thank you everyone for joining us. It is one of the best sellers and one of the well-read books, I mean the most read books by the investors in the market, The Psychology of Money by Morgan Housel. And I'm very, very fortunate to have this book talk done by the Amit Rajdev because I think he will do justice to this book, and I'm very happy. उन्होंने सामने से ही इस बार आते ही बोला कि I'll do this book talk, so I'm so happy that he has given us the consent for that. And without wasting much time, I request Amit sir to please. Hello. So, first of all, thank you, Sheetal ma'am, for giving me a chance. In fact, the idea for reading this book came from one of my friend and colleague, Paras Kalaria sir. In fact, I remember those days when I was an employee of the same institute, and he requested that if you can give the book talk on psychology of money, I would like to have some inputs from the side of universal human values. And during that time, we were taking it lightly, in fact. There were so many other book talks were organized. And what I feel is book talk could be a regular event for a library. But sometimes just looking at others when they are delivering book talk, what I feel is we need to read a particular book throughout a particular semester or after a particular period of time. So that's how I inspired, and I have gone through this book, Psychology of Money. It is written by Morgan Housel, and there are so many popular books in finance, and this is one of them. So basically, without wasting time, if you look at the investment is like a chai ki chuski. So when you are taking a sip of tea, and tea is very hot. So when you are taking a sip, you can take a sip, but you have to wait. You can't drink entire cup of tea at a time, right? अगर आप चाय का पूरा कप जो है एक ही साथ में पीने की कोशिश करोगे, इन्वेस्टमेंट की सेंस में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा होगा कि मुंह जल जाएगा. तो जब हम एक चाय की चुस्की लेते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है. तो इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट के हिसाब से कुछ ऐसा ही है कि आप एक चुस्की ले सकते हो, लेकिन पूरा कप एक साथ पीने की ट्राई करोगे तो दिक्कत होगी. सो लेट मी प्रोसीड फर्दर. Actually, this book, The Psychology of Money, it is written by Morgan Housel, and he has not highlighted any flow of the book in entire book itself. So when I gone through the entire book, I didn't find that he has divided chapters as per particular sequence. So the first challenge for me was to find out the flow. How should I present the book? And how should I summarize the book? So that was a challenge. And total, if you see, total 20 chapters were there. And these 20 chapters titles are there. 240 pages book. And almost 4 million, more than 4 million books already sold. So it is very famous and it is very well-known book as far as investment science is concerned. Now, creating flow is a difficult task. So what I have done is, from reader's point of view, I have characterized my own flow and raised some questions, which I was expecting that I will get answers from Psychology of Money. So my first question before reading the book was, why Psychology of Money? Psychology of Money क्यों? Title क्यों दिया? Right? What was the purpose? Second question that came in my mind, when we talk about money, what is wealth? अमीरी क्या है? Right? हम किसको अमीर बोलते हैं? What is the difference between being rich and being wealthy? धनी होना और अमीर होना, ये दोनों में क्या अंतर है? What is the difference? Because he was talking about being rich and being wealthy in entire book. So that question came in my mind. Third question, how should we behave with money? The author is of the opinion that it is not knowledge, but it is behavior that makes a lot of sense.
हम मनी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है, ये नहीं कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो पैसों के साथ हमारा बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए, दैट वाज अ क्वेश्चन। व्हाई पीपल फेल इन मैनेजिंग मनी। कुछ लोग फेल होते हैं मनी को मैनेज करने में, तो वो फेल क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एंड लास्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इन अवर लाइफ। अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है, राइट। सो दिस आर द 5 क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। ये 5 क्वेश्चन है जिसके हिसाब से मैंने पूरा फ्लो जो है डिसाइड किया है ये बुक को समराइज करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। So first question is why psychology of money. So I would like to start with a story which is given in the book. There is one person who is graduated from Harvard, completed MBA. His name is Richard Fuscon. After completion of MBA, he became CEO of Merrill Lynch, very well popular consultancy firm, and he became successful businessman. So he was having very good knowledge about finance and business, became very popular in the entire world. If you talk about his wealth, in terms of wealth, rather to say in terms of richness, so he was having house or home, you can say 18,000 square feet, 11 bathrooms, right, 2 elevators, 2 pools, 7 garages, and almost you can say there was nothing remaining as far as wealth is concerned. Was very successful businessman. So huge amount of wealth, huge amount of money accumulated. But in 2008, as we know, financial crisis came, and this person became insolvent. And he has to declare that I don't have any money right now. He was not having money. On the other side, there was another person who was just a layman, janitor, वो जो सफाई कर्मचारी बोलते हैं, जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसा एक सामान्य आदमी जिसका नाम था रोनाल्ड रीग। दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी, आप इसको गूगल कर सकते हो, इट इज अवेलेबल, राइट। तो ऐसा एक आदमी जो एक साफ सफाई करने वाला, गैस स्टेशन अटेंडेंट, उसके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, he didn't got any lottery prize, but you will be surprised जब उसकी डेथ हुई आफ्टर 92 years, 90 years, 92 years of age he died. You know how much wealth he had? $8 million. उसके पास $8 million का वेल्थ था। आउट ऑफ दैट 2 million he gifted to his kids. उसके बच्चों को उसने 2 million गिफ्ट किया। बाकी के जो 6 million थे वो भी उसने चैरिटी में, हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दिए। So he became philanthropist overnight. So from this story, the author wants to say that it is not about knowledge that makes a difference, it is about behavior that you make. Knowledge થી કોઈ ડિફરન્સ નથી પડતો, તમે પૈસા સાથે કેવું બિહેવિયર કરો છો એનાથી વધારે મેટર કરે છે. Your knowledge is not important, your degree is not important, right? It makes a sense, but generally behavior is more important. So talking about taking home, in fact, how many of you have heard the name Poor Dad and Rich Dad book? I think you have gone through. Majority of the people would be knowing the story of Poor Dad and Rich Dad. The same conclusion. The Poor Dad and Rich Dad. Poor Dad was professor. He was having a simple life, taking no risk. On the other side, Rich Dad was highly graduated. Means he was not graduated. He was not having any formal education. Then also he became rich. So the point is that other authors are also acknowledging that behavior is more important than knowledge. આપણું જે વર્તન છે એ નોલેજ કરતાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Progress happens slowly. This is another point that I like most. And setbacks too quickly. वेल्थ बनाने में काफ़ी टाइम हमारा चलता है, लेकिन जब वो गिरता है, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा, तो गिरने में उसको एक पल भर भी नहीं लगता. So progress is very typical, it takes time. But when we talk about crash, it becomes overnight. और उस टाइम में आप क्या करते हो, पैसों के साथ आपका बर्ताव क्या है, बट आप कैसे उसके साथ बिहेव करते हो, that makes a lot of difference. The last one is patience versus giving. लोभ
लालच और धैर्य, ये में इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे इसकी बात करूँ रोनाल्ड रीम की, उसके पास पेशेंस था, धीरज थी। लेकिन अगर हम रिचर्ड फुस्कोन की बात करें तो उसके पास धीरज नहीं, लालच था। तो जब आप ग्रीड पे आप सवार होते हो तो आप ये भूल जाते हो कि आपका ब्रेक कब लगाना है, राइट? एंड यू आर व्हाट यू से, यू स्लिप इनटू दैट पर्टिकुलर ग्रीड मेंटालिटी, और वो बाद में वो वेल्थ जो है जीरो हो सकती। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। Next is what is wealth? I think this is the reason I suppose I'm justifying the question. Why psychology of money? Psychology of money टाइटल क्यों दिया? क्योंकि बिहेवियर ऑथर को लगता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज की कंपैरिजन। आप कितने स्मार्ट हो, कितनी डिग्री है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कैसा बर्ताव करते हो पैसों के साथ, ये मैटर करता है। इसलिए उन्होंने टाइटल दिया है साइकोलॉजी ऑफ मनी। द सेकंड वन इज what is wealth and what is the difference between being rich and being wealthy, right? तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा जो पॉइंट वो कहना चाहते हैं कि रिचनेस, हम किसी को जब कोई भी पैसे वाला खर्च करता है तो हम उसका आउटपुट देखते हैं। उसके पास कार है, उसके पास बंगलो है, तो वो फिजिकल जो भी चीज़ें हैं वो हमको दिखती है। वी कॉल इट रिचनेस, उसको हम धनी बोलते हैं कि उसका धन जो है वो दिखता है क्योंकि वो खर्चा करता है। और वेल्थ क्या है, अमीरी क्या है? अमीरी ऐसा चीज है जो आपको दिखती नहीं, इट इज अ हिडन। तो बीइंग रिच मीन्स आपके पास आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो यू आर रिच, इट्स फाइन। एवरी मंथ यू आर अर्निंग 10 लाख रुपीज, इट शोज दैट यू आर रिच। और उसका आपका खर्चा करते हो तो वो भी आपकी जो मटेरियलिस्टिक नीड्स जो है वो आप दिखाते हो समाज को कि मेरे पास कार है, मेरे पास बंगलो है, वो रिचनेस है। लेकिन शायद कई बार ऐसा होता है कि वो खुद लोन पे कर रहा होता है, तो वो हमको पता नहीं है, राइट? तो वेल्थ क्या है एक्चुअली? कि आप 10 लाख की कमाई करते हो लेकिन आपने कितना अमाउंट खर्च अभी तक नहीं किया। द कार्स यू हैव नॉट परचेज्ड, द ड्रेस दैट यू हैव नॉट परचेज्ड, द थिंग्स दैट यू हैव अक्यूमुलेटेड, फाइनेंशियल एसेट्स आपके पास कितनी है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। सो बीइंग रिच इज डिफरेंट देन बीइंग वेल्दी। अमीर होना और धनी होना दोनों एक चीज नहीं है, राइट? और हम कभी भी किसी आदमी की रिचनेस देखते हैं तो उसका आउटपुट दिखता है, उसके पीछे उसने कितनी एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, कितना वो अक्यूमुलेशन है, उसके पास एसेट्स कितनी है, वो हमें दिखता नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर ही सेड दैट वेल्थ इज हिडन। वेल्थ जो है वो हिडन, वो दिखती नहीं, राइट? एंड देयर इज वन मोर पॉइंट ही हैज हाइलाइटेड दैट व्हेन वी से आई वांट टू बी अ मिलियनर, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं मिलियनर बनना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या होता है कि मैं $1 मिलियन खर्च करना चाहता हूँ। अभी तो हमारा लॉजिक ऐसा ही है, आई वांट टू बी अ मिलियनर मीन्स आई वांट टू स्पेंड $1 मिलियन, मैं $1 मिलियन खर्च करना चाहता हूँ। लेकिन वेल्थ जो है वो ऐसा बोलते हैं कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है, बिना बजट अगर आप उसके ऊपर खर्च नहीं करते तो आप वेल्थी हो। तो कहाँ पे ब्रेक लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। So that is the difference between being rich and being wealthy. धनी होना अलग है, अमीर होना अलग है। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है हम धनी होना चाहते हैं कि अमीर होना चाहते हैं। The third question is how should we behave with money? हमें पैसों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसके ऊपर मैंने थोड़ा मैं आप सबकी माफी चाहूंगा क्योंकि इसमें टाइम लिमिट कंसीडर करके थोड़ा मैंने कट शॉर्ट किया है, क्योंकि पूरी बुक जो है साइकोलॉजी ऑफ मनी वो उसी के ऊपर है कि हमको पैसों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। जो 20 चैप्टर्स दिए हैं उसमें से 20 आउट ऑफ 20 10 से 12 चैप्टर तो ऐसे हैं कि इसी क्वेश्चन को डील करते हैं, हाउ शुड वी बिहेव विथ मनी, हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए पैसों के साथ। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो पॉइंट्स मैंने कवर किए क्योंकि टाइम लिमिट भी थी। शीतल बेन ने बोला था 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो उसको कंसीडर करके आई हैव जस्ट टेकन सम पॉइंट्स। सो लेट अस गो विद द मेन क्रक्स ऑफ द बुक, हाउ शुड वी बिहेव विद द मनी। पहला चैप्टर जो था साइकोलॉजी ऑफ मनी में, उसका टाइटल था नो वन इज क्रेजी। कई बार हमको लगता है किसी को देख के ये तो पागल है,
ये रियल एक्सपीरियंस होता है। किसी का पैसा जैसे वो खर्च करता है उसको देख के हमको लगता है कि इतना मुझे मेरे पास होता तो मैं कुछ और अच्छी तरह से उसको स्पेंड कर सकता। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में ऑथर बोलता है नो वन इज क्रेजी, मीन्स कोई भी व्यक्ति पागल नहीं है, उसके पास उसको करने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास लॉजिक होता है। और दूसरी चीज जो मेन है, योर एक्सपीरियंस इज स्मॉलर देन व्हाट यू बिलीव। तो मैं जब बुक पढ़ रहा था तो मुझे एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि ऐसी कौन सी चीज है, जैसे बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना कि चलो ये बुक है, इसमें ऐसा बताया गया है कि वेल्दी कैसे बने, तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आप ऐसा बोल दो कि मैं ये 20 घंटे का एक कोर्स करूंगा तो मैं वेल्दी बन जाऊंगा, उससे मुझे पूरी स्किल्स मिलेगी। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि वो कौन सी चीज है जो पैसों के साथ ज्यादा मैच होती है, जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। विच आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वेल्थ, अमीर बनने के लिए। तो ऑथर बताता है कि ना तो एजुकेशन काम आता है, ना आपकी इंटेलिजेंस काम आती है, ना आपका फॉर्मल क्वालिफिकेशन काम आता है, और आप कितने स्मार्ट हो वो भी काम नहीं है। एक ही चीज काम आती है, एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस कैसा है पैसों के साथ, आप छोटे से बड़े हुए, किस घर में पैदा हुए, आपका बर्थ ईयर कौन सा था, आपका माता पिता का बैकग्राउंड क्या, आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर से आपका एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस करके आप डिसाइड करते हो कि पैसों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो जो एक्सपीरियंस आदमी करता है उस हिसाब से वो अपने पैसों के साथ कैसा वर्तन करना है वो डिसीजन लेगा। सो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स हाउ यू बिहेव विद द मनी। एक चीज उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल दी है, मैं आपको समझाता हूं। दिस इज अ चार्ट। आप कौन से साल में आपका बर्थ हुआ है ये भी तय करता है कि आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करोगे, राइट? आपका बर्थ कौन से साल में हुआ था ये भी डिसाइड करता है कि आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करोगे। मान लीजिए कि यूएस की बात करें, स्टॉक का ये चार्ट दिया है, दिस इज अ स्टॉक चार्ट। 1950s में अगर आपका बॉर्न हुआ है तो स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, एज वाइज यहाँ पे दिया है। और 1970 में अगर आपका बर्थ हुआ है तो स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा है उसका एक चार्ट दिया है, एक ग्राफ दिया है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो जो डार्क लाइट है, डार्क लाइन बोर्न इन 1970, उसको अगर आप देखोगे तो ये ग्रोथ जो है वो दिखाती है। और 1950 में जिसका बर्थ हुआ होगा वो स्टॉक मार्केट को देखता है तो आप देखोगे कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, फ्लैट है। तो फ्लैट है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा परवरिश उस देश में हुई है, उस टाइम पे हुई है जहां पे स्टॉक मार्केट फ्लैट ही था, तो मेरी सोच और मेरा स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करने का जो तरीका होगा वो एक तरह से होगा कि भाई ये चलता नहीं है, चलो इसको छोड़ो। और जिसका बर्थ उस साल में हुआ है जहां पे मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, मार्केट अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो मेरी सोच मार्केट को लेके पॉजिटिव। 1945 के बाद यानी कि वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो जर्मनी पूरा क्रैश हो गया था, उल्टा यूएस में उसका मार्केट 2 गुना बढ़ गया था उसी टाइम। तो एक कंट्री पूरा क्रैश होता है, एक कंट्री पूरा खड़ा होता है। तो जिस बंदे का जन्म और बर्थ जर्मनी में हुआ होगा उसको स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को लेके पूरा उसका थॉट प्रोसेस अलग होगा, और जिस बंदे का यूएस में जन्म हुआ उसी टाइम पे और उसने जो एक्सपीरियंस किया उसका पूरा एक्सपीरियंस है वो अलग होगा। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं कि आप पैसों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरी चीज एक हमारी जिसको बोलते हैं बायसनेस, बिहेवियरल फाइनेंस आपने वर्ड सुना होगा। પૂર્વગ્રહ ગુજરાતીમાં કહીએ, આપણા કેટલા પૂર્વગ્રહ હોય, બાયસનેસ હોય, અલગ અલગ ટાઈપના બાયસ હોય। તો ઓથર એવું કહે છે કે તમારો જે એક્સપિરિયન્સ છે પૈસાને લઈને આ વર્લ્ડમાં, that counts for 0.00001% of what has happened in the world. વર્લ્ડમાં જેટલી બધી વસ્તુ થાય છે એમાં તમારો એક્સપિરિયન્સ 0.00001% છે, અને તમે એવું માનો છો કે તમારા મનમાં એવું છે કે તમે 80% વસ્તુને તમે એક્સપિરિયન્સ કરી લીધો છે અને તમે જાણો છો। એટલે તમે એ માર્કેટને કે એના સ્ટોક્સને કે એની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પેટર્નને તમે ક્યારેય જજ કરી શકતા નથી, કારણ કે તમારો એક્સપિરિયન્સ બહુ નહીવત છે। ઇટ્સ અ વેરી સ્મોલેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ એન્ટાયર થિંગ્સ ધેટ હેપન્સ ઇન ધ વર્લ્ડ।
So that's how he justifies. So ultimately, let me conclude the things. आप कौन से साल में आपका बर्थ हुआ है, आपका पैसों के साथ एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन से कंट्री में आप जन्मे हैं, आपका फैमिली कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके ऊपर से आप पैसों का जो बिहेवियर है वो डिसाइड होता है. सो दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से. एंड योर एक्सपीरियंस इज वेरी स्मॉल देन व्हाट यू बिलीव. कौन है ये? वॉरेन बफेट. इसके ऊपर ऑथर कहते हैं कि वॉरेन बफेट के ऊपर 2000 से ज़्यादा किताबें लिखी गई, 2000 से ज़्यादा, कि इन्होंने पैसा कैसे बनाया. लेकिन कोई भी किताब, बहुत कम किताबें ऐसी होगी जिन्होंने ये समझाया होगा कि वॉरेन बफेट कितने साल से इन्वेस्टर रहे. तो ऑथर ये कहना चाहता है कि हाउ लॉन्ग यू प्ले इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ स्मार्ट यू आर. आप कितना लंबा खेलते हो मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन हाउ स्मार्ट यू आर. मतलब आप कितने स्मार्ट हो वो मैटर नहीं करता, आप कितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टर हो वो ज़्यादा मैटर करता है. अगर आप इसकी हिस्ट्री देखो वॉरेन बफेट की, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है काफ़ी, मेरे ख्याल से आप अगर पढ़ोगे, काफ़ी कम साल से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया. तो काफ़ी लंबे रेस का घोड़ा है, और जो लंबे रेस का घोड़ा होता है वो अमीरी तक जा सकता है, वेल्दी बन सकता है. अगर शॉर्ट टर्म में हम अगर उसको टैप करने के, जैसे चाय की पियाली, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से. और एक फैक्ट दिया है वॉरेन बफेट के हिसाब से, उसकी जो पूरी वेल्थ है वॉरेन बफेट की, वो 84.5 बिलियन नेटवर्थ जो थी, उसमें से आउट ऑफ 84.5 बिलियन 81.5 बिलियन मतलब 90% वेल्थ जब उनकी 65th बर्थडे आई तब उसको मिली. डज इट मेक सेंस? मतलब आपकी जो 90% वेल्थ है, मोर देन 90% वेल्थ आपको, आप जब 65 इयर्स के होते हो तब आपको मिलती है. तो ये जस्टिफाई करता है कि आप कितने बड़े टाइम के लिए इन्वेस्टेड हो, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन हाउ स्मार्ट यू आर. राइट. तो इससे ये साबित होता है कि अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा. ये भी बढ़िया है. इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद आया. Past a certain level of income, what you need is just what sits below your ego. तो उसमें उन्होंने ऐसे आर्ग्यूमेंट किया है कि सेविंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय स्पेंडिंग लेस. यू कैन स्पेंड लेस इफ यू डिजायर लेस. यू विल डिजायर लेस if you care less about what others think of you. दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आप उसको कम कर दो. And finally, it is argued that money relies more on psychology than finance. तो इसका अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य यही है कि पैसों का जितना भी हम खर्च करते हैं, तो जो खर्च करते हैं वो हमारी ज़रूरत के लिए करते हैं. We spend money for our needs. कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि नीड्स में से हम ईगो में कब चलेंगे. तो दूसरों का देख के जब हम खर्चा करते हैं तो वो हमारा थोड़ा ईगो के साइड चला जाता है. तो उसको दिखाने के लिए खर्चा करते हो तो ये होगा कि आपकी जो सेविंग्स है वो कम होती जाएगी, और जो वेल्थ का मतलब ये होगा कि हिडन जो आपने बचाया है, जो आपके पास में, वो आपका कम होता है. तो सेविंग का मतलब ये होता है कि सेविंग इज योर इनकम माइनस ईगो. आपकी जो इनकम है उसमें से आपका ईगो हटा दो, बाद में जो रहता है वो आपकी सेविंग. ऐसा ऑथर जो है वो कहना चाहते हैं. ये भी मुझे पसंद आया, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि सर ऐसा क्लास करा दो और ये बुक पढ़ने में से क्या सीखने को मिलेगा, ऐसा बता दो कि जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट में हम लोग पैसा कमा सकें, वेल्थ बना सकें. ऐसा क्या मिल रहा है हमें बता. तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी प्राइस लेवल पे नहीं होती. आप पे करते हो, आपको भी पता नहीं होगा मैंने पे करते. जैसे एक एग्जांपल लूँ.
सुपारी काटने वाला होता है, तो गुजराती में हम ऐसा बोलते हैं कि જ્યારે ઓલો સુપારી કાપે ને એની જે એને શું કહેવાય સુડી, એ એક વખત તમારું લોહી લે, એક વખત તમારી આંગળી ઉડાડી દે. એટલે માર્કેટમાં પણ એવું છે કે તમારે કંઈક આપવું પડે, તમારે પ્રાઇસ પે કરવી પડે. મફતમાં તમને કોઈ વસ્તુ મળતી नहीं. देयर इज नो फ्री थिंग इन दिस वर्ल्ड. अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ देना पड़ेगा. और उसमें मार्केट में कई बार ऐसा लिखते नहीं है कि आप आइए मार्केट में, आप इतनी प्राइस पे कीजिए, हम आपको रिटर्न देंगे. मार्केट की प्राइस क्या होगी? वो रात को आपको सोने नहीं देगा. राइट? पेशेंस. मार्केट की प्राइस पेशेंस, धीरज, धैर्य जिसको बोलते हैं. तो वो प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी. तो इसीलिए वो बोल रहे हैं एवरीथिंग हैज अ प्राइस बट नॉट ऑल प्राइस अपीयर ऑन लेबल्स. उन्होंने एक बड़ा बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. नेटफ्लिक्स का नाम सुना है? नेटफ्लिक्स स्टॉक रिटर्न मोर देन 35,000% फ्रॉम 2002 to 2018 but traded below its previous all-time high on 94% of days. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है उसका ओवरऑल टाइम पीरियड लो उसका, तो आपको पता चलेगा कि 94% ऑफ डेज उसका जो टाइम पीरियड था उसमें वो उसकी जो हाई प्राइस थी ना उससे कम प्राइस में वो ट्रेड हो रहा था. तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? कई बार ऐसा होता है, स्टॉक में ऐसा बहुत होता है कि किसी ने आके बोल दिया कि तो चलता ही नहीं, तुम थक जाओगे. और थकवाता भी है. वो पेशेंस की क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट लेता है कि इसके पास पेशेंस है कि नहीं, तो थकवाता है. वो थकवाता है, वो जो थकान है वही तो प्राइस है, वो आप पे कर रहे हो मार्केट. आर यू गेटिंग दिस? सो या इट इज. So these are the examples he has given and he is justifying that everything has a price but not all price appear on the labels. ये बड़ा क्वेश्चन है. तो थर्ड पार्ट वी आर कंप्लीटिंग. थर्ड पार्ट ये था कि पैसों के साथ अगर आप बिहेव करते हो तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी जो है वो एक बार आप पढ़िए, क्योंकि मैंने 2 बार पढ़ी है और जब भी मैं उसका पेज टर्नअप करके बैठता हूँ एक चैप्टर पढ़ने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता. वो इसलिए फाइनेंस स्पेशलाइजेशन या ऐसा कोई डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी बंदा जो है वो ये बुक आसानी से पढ़ सकता है. राइट? तो इसमें एक और कहानी है जो ऑथर बोलते हैं कि क्यों आदमी जो है वो फेल होता है पैसों के साथ. वो क्या ऐसी चीज़ है जो उसको नहीं करनी चाहिए. वाई पीपल फेल इन मैनेजिंग मनी. तो उसके लिए एक स्टोरी है जो आपने सुनी होगी और मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे. ये कौन है? Who is this? Any student? इसका नाम रजत गुप्ता है. रजत गुप्ता CEO ऑफ मैकिन्से. इनका अगर आप बैकग्राउंड देखो तो बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था. उनका जो बर्थ था वो कलकत्ता में हुआ और 1971 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया. उसके बाद उन्होंने MBA किया हार्वर्ड में से और बाय mid of 40 he became CEO ऑफ मैकिन्से. 2008 में उसके पास $100 मिलियन की वेल्थ. 2008 में एक चीज हुई जो उसकी पूरी स्टोरी चेंज हो गई. इनको काफ़ी सारी कंपनी में ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स में थे. तो यहाँ पे उनका गोल्डमैन सैक्स में भी उनका नाम था बोर्ड ऑफ मेंबर्स में. तो कई बार क्या होता है, कोई स्टॉक गिरता है, जैसे पेटीएम की बात करूँ तो उसके साथ ऐसा हुआ था, आप सब लोगों को पता है. तो कोई स्टॉक गिरता है तो कोई उसका प्रमोटर या उसका जो बिजनेसमैन होता है वो रिक्वेस्ट करता है कोई अच्छे आदमी को कि आप मेरी
कंपनी में पैसा डालिए। अगर आप पैसा डालेंगे तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, और लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा तो मेरे स्टॉक का प्राइस लेवल पे आ जाएगा। तो गोल्डमैन सेज में ऐसा हो कि गोल्डमैन सेज थोड़ा गिरने वाला था, और उसमें वॉरेन बफेट को बोला गया कि प्लीज़ हेल्प अस, यू इन्वेस्ट सम मनी इन गोल्डमैन सेज और इसको बचाओ। तो जो ये डील हो रही थी ना, वो फ़ोन पे हो रही थी, और इसका पता किसको चला? रजत गुप्ता। तो रजत गुप्ता ने जैसे ही इसका पता चला तो उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया। तब तक वो न्यूज़ जो है वो पब्लिक में नहीं पहुंची, लेकिन रजत गुप्ता को पता चल गया था कि गोल्डमैन सेज में ये डील होने वाली है, और उसको वो अपॉर्चुनिटी का, उसको बिलियनर बनने का कीड़ा था। रजत गुप्ता वॉज हैविंग ग्रीड फॉर बिकमिंग अ बिलियनर फ्रॉम मिलियनर। तो उसने वो तुरंत फ़ोन लगा दिया और उसने स्टॉक ले लिए, उसके फ्रेंड ने, और स्टॉक ले लिया और पैसा बना। इसको हम फाइनेंस की लैंग्वेज में इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, यूएस का जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसको ये पता चला कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया, अभी तो छोड़ेगा नहीं। तो इनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ कोर्ट में जाना पड़ा, और उनकी पूरी करियर जो है वो दाव पे लग गई। तो एक ही चीज़ था, वाई पीपल फेल इन मनी। तो जो ऑथर है वो ऐसा बोल रहे हैं कि कई बार हम लोग जो है ना वो गोल्ड पोस्ट बोलते हैं, उसको टारगेट बोलते हैं ना, गोल्ड पोस्ट। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे पैसा बनता जाता है वैसे वैसे वो गोल्ड पोस्ट एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है। तो गोल्ड पोस्ट को स्टॉप करना वो बहुत दिक्कत वाला था, उसमें ब्रेक लगानी पड़ती। वो ये भाई साहब करना कूल, और जो नहीं गवाना था वो भी गवा, राइट। तो उसके ऊपर से एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने हाईलाइट की है ये स्टोरी के ऊपर से, वो मैं आप सबके सामने मेंशन कर देता हूँ। ये लाइन आप पढ़िए, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। There is no reason to risk what you have and need for what you don't have and don't need. समझ में आ रहा है? आपके पास जो चीजें हैं वो कई बार आप दाव पे लगा देते हो उस चीजों के लिए जो आपको जरूरत नहीं है। तो क्यों लगाते हो? That's a question, right? क्यों आप दाव पे लगाते हो? तो कौन सी चीजें दाव पे लगानी है? जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए आप क्या लगा रहे हो? अपने पास जो चीज़ है वो आप दाव पे लगा रहे हो। तो कब वो गोल्ड पोस्ट को स्टॉप करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग गोल्ड पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। उसको आगे आगे लेके जाते हैं हम लोग, कितना आगे और आगे और आगे, वो मिलियनर बन गया, बिलियनर बनेगा, बिलियनर से आगे बनेगा। सो ये कोई ब्रेक नहीं। सोशल कंपेरिजन इज अ प्रॉब्लम। हम सोसाइटी में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसको हमें रिस्क पे लेनी नहीं चाहिए। आपके पास जो नहीं है उसको पाने के लिए हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रिस्क पे लगा देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी आप ये बताइए ये कौन सी मूवी का सीन है और कौन सा डायलॉग है? दीवार। डायलॉग क्या था? मेरे पास माँ। तो वो बोलता है ना कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, तुम्हारे पास क्या? तो वो सामने से आंसर देता है मेरे पास माँ। तो वहाँ पे डायलॉग, ये डायलॉग बहुत फेमस हो चुका है, वेरी पॉपुलर। तो मुझे इस बुक जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी ऐसा एक डायलॉग मिला इसी बुक में से। उसमें दो नॉवेल, बहुत पॉपुलर नॉवेलिस्ट जिसको राइटर बोलते हैं यूएस के, खास करके जोसेफ हेलन। ये एक नॉवेल बहुत पॉपुलर राइटर है, नॉवेल लिखते थे, और उन्होंने Catch-22 करके नॉवेल लिखी। और सामने दूसरे भी नॉवेल राइटर है कर्ट वॉनेगट, वो भी बहुत पॉपुलर राइटर है। दोनों एक जगह पे पार्टी में इकट्ठा हुए, पार्टी थ्रो की थी हेज फंड मैनेजर ने, रातों रात अमीर बन गया। उसने रातों रात अमीरी हासिल की। अमीर मतलब काफ़ी रिच हो चुका
था, एक ही दिन में वो बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया था। उसने उसी ने पार्टी ठोकी। तो ये दोनों वहाँ पे जाते हैं, जोसेफ हेलर और कर्ट वोनिगट। कर्ट वोनिगट जो है इसको पूछता है कि आपने जो कैच 22 नाम की जो नॉवेल लिखी थी, उसमें से आपने जो पैसा बनाया पूरी इतनी मेहनत करके, उससे कहीं ज़्यादा पैसा ये जो फंड मैनेजर है, हेज फंड मैनेजर, उसने एक रात में बना दिया। तो तब ये जाके बोलता है कि आई हैव समथिंग ही विल नेवर है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं। कोई आंसर देगा? आई एम शोइंग यू द वर्ड। एनी आंसर? साइकोलॉजी ऑफ मनी। मेरे पास कुछ ऐसा है, पेशेंस, ओके, પીનો આટલું પૂરતું છે, બસ બહુ થઈ ગયું, આટલું મારા માટે બહુ છે, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कि एक लेवल पे जाने के बाद वो बंदा खुद उसको पता चलता है कि भाई बहुत हो, इट्स इनफ, वो उसके पास इनफ। तो वो ऐसा डायलॉग है ना कि मेरे पास इनफ है, तुम्हारे पास क्या है? Last and most important question, amazing, what you say, eye-catchy content. This is, if I'm not wrong, chapter number 7, freedom. What is the purpose of earning money in our life? This is the last point which I would like to highlight. Ultimately हमारे जीवन में पैसा कमाने का पर्पस क्या है, और या तो टू बी स्पेसिफिक पैसे का रोल क्या है। तो उसमें हैप्पीनेस और फ्रीडम की बात की है ऑथर ने। मैं आपको एक पूरा सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले ऐसा था कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब काफ़ी ज़्यादा थी, 40% 50% जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में थी। तो हम ब्लू कॉलर वर्कर थे ज़्यादातर। तो सुबह 8 से दोपहर को मान लीजिए 3 या शाम को 5 बजे की जॉब होती है, तो आदमी वहाँ से रिटर्न हो जाता है, उसका जो फिजिकल काम होता है वो खत्म हो जाता है। तो फिजिकल काम की एक खासियत है कि वो वहाँ पे आप छोड़ के आ जाते हैं, कुछ घर पे लाने की ज़रूरत नहीं। और अभी जो जितनी सारी हमारी सोसाइटी में जॉब है उसमें पूरा सिचुएशन फ्लिप हो गया है। अभी पूरी जॉब जो है वो प्रोफेशनल हो गई है। तो जब भी आप कोई काम घर पे लेके जाते हो तो काम घर पे साथ में आता है, क्योंकि आप माइंड से काम करते हो, आप बॉडी से काम नहीं करते, टेंजिबल थिंग्स नहीं। ऑफिस घर पे आ जाए, ऑफिस घर पे आ जाए, यस। तो पूरा दिन आपका काम चलता रहता है। तो धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ी, हमारे पास स्मार्टफोन आए, काफ़ी सारी सुविधाएं आज भी हमारे पास है, लेकिन दिन ब दिन टाइम के ऊपर जो कंट्रोल है ना हमारे, वो कम होता जा रहा है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। मेरा दिन का शेड्यूल क्या रहेगा वो मेरा एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। तो किसी भी बंदे को जैसे कोई चीज़ बहुत पसंद है, कोई काम करना पसंद, जैसे कोई किसी को म्यूज़िक बजाना पसंद है, कोई म्यूज़िक बजाता है। अभी ऑथर ऐसा कहता है कि उस बंदे को जिसको म्यूज़िक बजाना पसंद है उसको बुला लो, और वो अगर उसको आप पूरा दिन ये बजाने के लिए बोलो तो थोड़ा टाइम उसको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उसके शेड्यूल पे आप कंट्रोल करने जाओगे तो उसको ड्रैग हो जाएगा, वो उसको नेगेटिवली लेगा, आदमी थक जाता है, पक जाता है। तो अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी टाइम के ऊपर कंट्रोल लेना चाहता है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, मेरी जॉब या मेरा जो बिजनेस है उसमें से मेरे लिए मेरी जो प्रोजेक्ट है, मेरी जो विश है, उसके हिसाब से मैं कुछ काम करूँ, तब जाके वो खुशी बनाना है। तो सबसे हैप्पीनेस के लिए जो कोई चीज़ है, अगर कोई आदमी वेल्दी कम होता है उसके लिए वो एग्जांपल देते हैं कि हैप्पीनेस के लिए जैसे मैं एक दिन की छुट्टी लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और उसका मेरा जो सैलरी है वो नहीं कटता है, तो मैं थोड़ा वेल्दी हूँ। मैं एक वीक की छुट्टी लेता हूँ और मेरी इनकम पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मैं उसे ज़्यादा वेल्दी हूँ। मैं ऐसी जॉब करता हूँ जिसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है, उसको जल्दी है तो मैं आए सामने से, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं उससे भी ज़्यादा वेल्दी हूँ। और
मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, पैसा अपने आप आएगा। तो मुझे कैसी लाइफ जीनी है, मेरा टाइम पे कंट्रोल क्या रहेगा वो मैं खुद डिसाइड करूँगा। तो वो जो काम है ना वो पैसों का काम है, वो ऐसा बोल रहा है। व्हाट इज़ द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ मनी? मनी की वैल्यू ये है कि आपकी ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं उसको आपको करने में हेल्पफुल हो और कंट्रोल ओवर टाइम आपको वो दे पाए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्पोर्ट्समैन आप देखोगे उनकी लाइफ ऐसी होती है कि वो 5 साल खेल लिया, 10 साल खेल लिया, 10 साल खेलने के बाद वो अपनी मौज में रहता है, उसको पता है मुझे ये करना है। तो वो जो टाइम के ऊपर जो कंट्रोल है वो पैसा देता है। So that is what ultimate purpose of money in life. So with this, without taking time, let me just conclude now. The highest form of ये जो मैं आपको बता रहा था वो यही है. The highest form of wealth is ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want to do. ये wealth का power है. The moment you feel that you don't require to spend time on earning money, but you can spend time on what you want to do, it is the real value of money. आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो, फ्रीडम आपको मिल रही है, आपकी लाइफ का जो शेड्यूल है वो आपके हाथ में है, वो पैसों का पावर है। वो बस वो पैसे का रोल इतना ही कि आपको टाइम के ऊपर कंट्रोल दे। सो विद दिस I think just a second. So let me complete. 5 parts we have discussed and 5 questions we have discussed. I just repeat the questions for your understanding. 5 questions. First question, why psychology of money? Second question, what is wealth? What is the difference between being rich and being wealthy? Third question, how to behave with the money? पैसों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? Fourth question, it was related with why people fail in managing money. लोग फेल क्यों होते हैं पैसों के साथ? और लास्ट क्वेश्चन, what is the purpose of earning money? तो लास्ट में किसी ने बहुत सही बात कही है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सतीश कौशिक का ऑब्जर्वेशन है, जो भी नहीं है बॉलीवुड से, आपने बहुत बड़ा नाम है। सो विद दिस, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग। थैंक यू।